So today we'll start with the problem of the exercise 2.3. I'm bringing the problems. Okay. First we'll do the problems from the book only, and then gradually we'll be doing some problems which will be of little different level. Level in the sense I'll not say difficult, but I'll say that it is different, little different from the book. Just hold on, please. I'm bringing the question. Okay, first question already I have told you to do, but still I'll discuss this again once more. So here is the first question of exercise 2.3. It is first question of 2.3. Right, this is your first question. Let us make it little bigger. Okay. So already we have discussed, I think. So what they have told you to do here, which of the following relations are functions? Which of the following relations are function? Give regions. If it is a function, determine its domain in the range, right? So just try to remember, at some point of time when I explained the function with the arrow diagram, I told you कि function में क्या होता है, every element in the domain has unique image. The meaning is, clear cut meaning is what? If you see the arrowhead, from the same point in the arrow diagram, there should not be divergent arrowhead coming out, right? In ordered pair, what we'll see in that case, कि first place में कोई भी element repeat ना हो. There should not be any repetition of elements in the first place if we write in terms of ordered pairs. So just you observe that because they have given you in terms of your ordered pair here. So I can see that in the first place, all these elements are different, right? 2, 5, 8, 11, 14, and 17, all are different. That means every different element will have, every element have unique image. हाँ, ये दूसरा बात है कि हर एलिमेंट का सेम इमेज है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में. इफ यू वांट टू जस्ट ट्राई टू डिपिक्ट दिस इन द फिगर, say if you just try to draw the array diagram like this. So for this, if you name this as function f, then whatever element is there, suppose 2, it is going to 1, right? 2 is going to 1, and then suppose your 5 is there, 5 is also related to 1, then 8 is there, everyone is going to 1. It's different case, no problem, right? It's a constant function here. But thing is that your all these different element have unique image. So it is a function. So I'm writing it as yes, ys. So you have to give this region. Second is probably also a function. Yes, it is also a function. Third is not a function. Why? Users emphasize in these ordered pairs 1, 3, and 1, 5. 1, 3 is in function means image of 1 is 3. 1, 5 is in function means image of 1 is 5, which indicates that one has two different images, and which should not be the case for a function. So that is the reason you should specify it. Okay. So that's the question. And then now we are going for, before I bring question number 2, right? Before I bring question number 2, let me bring for you the next question. That is question number 3 and 4 first I'll discuss. 3, 4, and then we'll go for the domain. Because domain problems I want to discuss in the same go. So here is your question number 3 and 4 together I'm bringing, right? This is the question number. This is your question. So little bigger in size I did. Okay, fine. So what did you find? They have told you about the function f, which is given by fx equal to 2x minus 5. Write down the values of this. Please remember the question of polynomials at class 9. ये क्लास 9 का प्रॉब्लम. तब पॉलिनोमियल px लिखा था या fx लिखा था या gx लिखा था, जो भी लिखा था,
but it is something like that only, right? So I do not have to do, you have to just replace the values. And then similarly इस टाइप का भी क्वेश्चन एक ग्राफ में था 9 में, if you remember. तो इसमें क्या बोला है, the function t which maps to the temperature C, Celsius, sorry, the function t which maps the temperature in degree Celsius into temperature into degree Fahrenheit. तो ये जो t है फंक्शन है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट तक कन्वर्ट करने वाला, डिवाइड बाय दिस. अच्छा, हाफ ऑफ द क्वेश्चन इज नॉट ब्रॉट बाय मी. नाउ आई एम ब्रिंगिंग, just by chance I have left out, just a minute. So this question is also like the previous one only, so you do not have to worry about it doing this question you have to do. So you are told to find these values again directly. You put and find a value, just input टी जीरो. डायरेक्टली क्या करोगे, टी जीरो मतलब ये सी के जगह में क्या जीरो बैठाना है, राइट? सी के जगह जीरो बैठाएंगे मतलब यहाँ जीरो बैठेगा. सो वट एवर इज द वैल्यू डेट यू फाइंड. यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा देखना है तुमको, और अगर कोई डाउट है तो यू विल बी आस्किंग मी, राइट? अब मैं आता हूँ मेन जो हमारा यहाँ का मेन मोटिव है फंक्शन का, जिसमें हम लोगों को अपना लॉजिक लगाना है. दैट क्वेश्चन आई एम गोइंग टू ब्रिंग, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2. You don't feel that these are the only questions. We have to go to little different high level questions. That also I'll discuss first. Let me finish with the exercise questions, book questions, right? So these are the questions where they are asking you to find a domain. Acha, domain and range, both they are asking you to find domain and range, right? So before I go for any of these to answer, ठीक है, कुछ भी आंसर करने से पहले एक बार क्विकली हम लोग फिर डोमेन एंड रेंज क्या है रेफर कर लेंगे. डोंट गेट लाइक बोर्ड, क्योंकि जब फंक्शन का करोगे ना हमेशा डेफिनेशन से शुरू करना सबसे अक्लमंदी का बात है. सो व्हाट विल डू हियर, पहले मैं बोल देता हूँ डोमेन क्या है, क्योंकि डोमेन का हम लोग जो डेफिनेशन देते हैं ना वो काम का डेफिनेशन नहीं है, दैट इज नॉट वर्केबल. दैट इज जस्ट टू डिफाइन. वर्केबल डेफिनेशन भी मैंने तुमको दिया था. डोमेन का मतलब है वो सारे वैल्यूज जिस वैल्यू में फंक्शन को तुम फाइनाइटली निकाल सकते हो, राइट? फॉर एग्जांपल इफ आई गिव यू द फंक्शन एज f of x equal to 1 by x, तो इसका डोमेन हर रियल नंबर होगा, बट यू हैव टू एक्सक्लूड जीरो फ्रॉम इट. व्हाई जीरो फ्रॉम इट? बिकॉज जीरो में तुम f of 0 नहीं निकल पाओगे. सो डोमेन से इसको किक आउट करना पड़ेगा. सो डोमेन मीन्स ऑल दोज वैल्यूज जिसमें फंक्शन को तुम फाइनाइटली निकाल सकते हो, ठीक है? दैट इज द कंसेप्ट ऑफ डोमेन दैट वी हैव टू सी. And then now if I am talking about a function here, this left side is completely the domain of f. और यहाँ पे जो इमेज बनेगा अंदर, दिस इज द रेंज. इट मे नॉट बी द कंप्लीट कोडोमेन, इट मे नॉट बी, और हो सकता है कभी हो जाए, ठीक है? सो यहाँ पे देखो आई एम गोइंग टू वर्क ऑन इट. एफ एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ मॉड एक्स. अब इसका डोमेन एंड रेंज निकालना है. देखो इन मेनी केसेस प्रॉब्लम्स कैन बी डन बाय इंस्पेक्शन. इंस्पेक्शन का मतलब है ऑब्जर्वेशन. merely by observation what earlier you know, उससे तुम निकाल सकते हो. तो देयर विल बी ए टू कॉम्बिनेशन ऑफ अटेम्प्टिंग दिस प्रॉब्लम्स. एक तो होगा जो जनरल वे है, दैट आल्सो आई विल टेक. और एक है ऑब्जर्वेशन, जो तुम्हें ऑब्जर्वेशन से पता चला है कि हाँ ऐसा होने से ये हो सकता है, एंड योर ऑब्जर्वेशन विल बी करेक्ट. सो देयर आर टू अटेम्प्ट्स. नॉर्मली जनरल अटेम्प्ट्स आर ऑलवेज फ्रूटफुल, बट कभी कभी किसी किसी सर्टेन प्रॉब्लम में तुम ऑब्जर्वेशन से काम चला सकते हो इफ द प्रॉब्लम इज इजियर. सो नाउ लेट मी ट्राई टू डू क्वेश्चन नंबर 1. यहाँ पे क्या दिया है देखो, माइनस ऑफ मॉड एक्स, ठीक है? अच्छा, अब तुम पहले से दिमाग लगाओ. अभी थोड़ा मैं स्लो हो जाऊंगा, आई बी लिटिल स्लो बिकॉज यू हैव टू गेट इट इन डेप्थ. तो क्या है मेरे को करना क्या पड़ेगा कि मुझे वो सारे एक्स का वैल्यू निकालना है सो दैट इट कैन बी डिफाइंड. डिफाइंड का मतलब वही है, इफ आई से एफ एक्स इज डिफाइंड, मतलब वो सारे वैल्यूज ऑफ एक्स जिसमें एफ एक्स निकाला जा सकता है फाइनाइटली, ठीक है? तो कैसे लिखेंगे हम लोग, थोड़ा डायलॉग बाजी करते हैं, राइट? थोड़ा सा करना ही पड़ेगा इसमें. क्लियरली, right, for all x belongs to a real number, mod x is defined.
क्या mod x डिफाइंड होगा? डिफाइंड मतलब हर रियल नंबर के लिए mod x तो निकाल ही सकता हूँ। अच्छा, अगर mod x निकाल सकता हूँ, इफ आई कैन फाइंड mod x देन आई कैन फाइंड नेगेटिव ऑफ इट। अरे भाई, एक नंबर निकाल लिया तो उसके सामने नेगेटिव बैठाना क्या बड़ा बात है? कोई बड़ा बात नहीं है, राइट? तो इसका मतलब दैट इज व्हाट आई हैव गॉट फॉर एवरी x बिलोंग टू r fx इज डिफाइंड। देयरफॉर हमने तो वही बोल रहा था, fx जहां डिफाइंड होगा वही तो डोमेन है। सो डोमेन ऑफ दिस विल बी व्हाट? अ रियल नंबर। डिड यू अंडरस्टैंड दैट? Yes, sir. Okay, fine. So now we'll be writing about its range. रेंज का मतलब है, अगेन मैं बोलना चाहता हूं, रेंज का मतलब है अगर ये फंक्शन है, इसमें जो आउटपुट तुम्हारे हाथ में आएगा फंक्शन का, यही रेंज है। तुम्हारे हाथ में क्या प्रोडक्ट निकल के आया है, दैट कैरेक्टर यू टेल, कहाँ रहता है, उसका घर का एड्रेस बताओ, बस दैट इज द रेंज। तो हम लोग क्या करेंगे, देखो यहां भी ऑल्सो फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, दैट इज द डोमेन हियर, mod of x is always greater than or equal to 0। mod of x हमेशा पॉजिटिव या फिर क्या होगा, 0 होगा। अगर हमने निगेटिव कर देता हूं मल्टीप्लीकेशन, तो ट्राई टू रिमेंबर देयर इज ए प्रॉब्लम, इनइक्वालिटी में एक प्रॉब्लम है कि अगर a लेस देन b एंड इसको तुम दोनों साइड से -1 में मल्टीप्लाई करोगे तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाता है। सो यहाँ पे भी हो गया। So ultimately, what did you observe? fx is less than or equal to 0। अरे भाई बढ़िया हुआ, मतलब जब जब तुम x इक्वल टू r लोगे, fx का वैल्यू 0 या 0 से कम आएगा। मतलब तुम्हारे हाथ में ऐसे हाथ फैला के बैठे रहो, 0 आएगा या फिर उससे कम वैल्यू आएगा, पॉजिटिव कभी नहीं आएगा। इसका मतलब नेगेटिव रियल नंबर इज द रिक्वायर्ड रेंज, राइट? नेगेटिव रिक्वायर्ड, सो लिख दो देयरफॉर, सॉरी मेरा स्टाइलस का कुछ गड़बड़ है शायद। तो रेंज इज इक्वल टू, रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कितना होगा, माइनस इंफिनिटी से 0 तक आएगा, राइट? क्योंकि ये लेस देन 0 का मतलब है, तुम 1 मिनट में नंबर लाइन में देख लो, ये अगर 0 है, यहाँ इंफिनिटी से चलते हुए तुम्हें यहाँ तक आना है। लेस देन 0 का मतलब यही है। सो इट इज द रिक्वायर्ड रेंज। प्लीज सी दिस बाय द टाइम आई थिंक अबाउट द नेक्स्ट क्वेश्चन। योर नेक्स्ट क्वेश्चन इज ओके फाइन, ठीक है। I'll be explaining for the next question also। पहले मैं एक थोड़ा सा छोटा सा इनिशिएशन दे देता हूँ। पहले डायरेक्टली बोल रहा हूँ, ये कैसे आएगा तुमको खुद से भी पता चलेगा, बट नॉट राइट एट दिस मोमेंट आई स्पीक। अभी जस्ट मेमोरी एड के हिसाब से मैं दे रहा हूँ, यू विल यूज दिस एज ए रेडी रेकनर, राइट? इफ यू हैव इनइक्वालिटीज लाइक दिस, ए स्क्वायर लेस देन, सॉरी ए स्क्वायर मत लिखो, इधर वेरिएबल दे देता हूँ, कोई बात नहीं, वी कैन डिफाइन दैट बाई सम अदर वैल्यूज एज वेल। सपोज एक्स स्क्वायर लेस देन और इक्वल टू बी स्क्वायर, यहाँ पे क्या होगा, व्हाट विल हैपन, इट इज मॉड एक्स लेस देन बी, लेस देन और इक्वल टू बी। स्क्वायर रूट डायरेक्टली लिया नहीं जाता है। बहुत लोग इसके बारे में क्या लिखते हैं मालूम है, दे राइट इट लाइक दिस, स्टूडेंट्स यूज टू राइट इट लाइक दिस। ये गलत है, दिस इज रॉन्ग। व्हाई रॉन्ग, आई विल एक्सप्लेन यू बट नॉट नाउ। ये हो गया। सो ये मॉड एक्स जब ऐसा होता है तो तुम आइडिया लगा लो, इसको मैं तुमको बोल रहा हूँ मॉड एक्स ऐसा होने से क्या होगा। मान लो मॉड एक्स लेस देन और इक्वल टू 3, मतलब वॉट एवर इनपुट यू गिव दैट शुड बी लेस देन और इक्वल टू 3। तो 0 अगर होगा तुम 3 तक जा सकते हो। ठीक उसी तरह से उतना ही तुम लेफ्ट साइड में भी जा सकते हो। कहने का अर्थ यही है कि दिस विल रिप्रेजेंट द रेंज -3 टू +3 इफ यू हैव क्लोज इंटरवल, दैट इज इक्वलिटी साइन। और अगर स्ट्रिक्टली इक्वल होगा तो, स्ट्रिक्टली लेस देन होगा तो इसमें स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी आएगा। सो दैट विल टेल यू व्हाट, -b less than or equal to x less than or equal to b। of course it is useless to mention that b is positive, क्योंकि अगर b नेगेटिव होगा तो it will be true for everything, right? sorry it will never be true, it will never be true, क्योंकि मॉडुलस कभी भी नेगेटिव नंबर से छोटा हो ही नहीं सकता है। सो यू शुड रिमेंबर इट लाइक दिस। सो कल को अगर किसी ने तुमको बोल दिया ऐसे करके, यू शुड रिमेंबर इट रियली बिकॉज ऑफ दैट आई एम टेलिंग यू।
If somebody tells you like that, you should be able to remember it like this very, very quickly, right? If it is strictly less than say 16, then you should be able to remember it very, very quickly. Sorry, it is strictly less than होने से क्या होगा, नीचे inequalities का नहीं सब साइन स्ट्रिक्टली बुझी पैसा. हैव यू अंडरस्टूड? Yes, sir. ओके, सो ये हो गया तुम्हारा, इट इज फॉर द लेस देन साइन. ठीक है. ठीक उसी तरह से इफ आई गेट दिस थिंग्स फॉर this positive greater than 1, then this also is like this, and this will imply what? नंबर लाइन में मैं दिखा देता हूं तब समझ में आएगा तुमको ज्यादा. ये माइनस से ये ए होगा, तो ये जो इस साइड में है या इस साइड में है, बाहर बाहर बीच वाले साइड को छोड़ के, यही है मॉड एक्स का ग्रेटर देन का वैल्यू. तो यहाँ पे ऐसे कैसे होगा? दिस विल बी माइनस इंफिनिटी टू माइनस ए क्लोज इंटरवल, then a to infinity. This is the value. So कल को किसी ने अगर तुमको ऐसे सडनली बोल दिया कि एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू से 16, so you should be able to tell very readily कि मेरा वैल्यूज इस वाले में लाई करेगा, और ये 4 इंक्लूड नहीं होगा अगर ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन होगा. मान लो ये स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन है, 81 दिया हुआ है. अच्छा, मैं परफेक्ट स्क्वायर कर रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि परफेक्ट स्क्वायर आएगा, रूट ओवर भी आ सकता है कभी कभी. चलो इसको 80 कर देते हैं, तब मजा आएगा. तो ये रूट ओवर 80 होगा. एक्स बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू माइनस रूट ओवर 80. अब इसको तुम बना सकते हो 4√5, मैं वो नहीं बना रहा हूँ. स्ट्रिक्टली होने के कारण यहाँ ओपन इंटरवल आया, यहाँ पे रूट ओवर 80 एंड देन इंफिनिटी. दिस वे विल बी राइटिंग द expressions. These two inequalities are very, very important. Please note it down. ठीक है. अभी जो बक दिया मैंने इनइक्वालिटी के बारे में, प्लीज थोड़ा सा इसको 1 मिनट के लिए देख लो. ओनली 1 मिनट. आई विल टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन. Sir, can you scroll up to the previous one? दिस वन. Yes, sir. ओके, प्लीज सी. Yes, sir. Done. Okay. So now I'll be going for the question. So your question number 2, it's a very important question, good question. I don't know what name is given. I am writing fx only. It is 9 minus x square, right? 9 minus x square. सो इसके बारे में बोलना है. अभी दिमाग में बस सोचो, पहले से ही सोच लगा दो कि भाई अगर कोई चीज स्क्वायर रूट के अंदर है, उसको मुझे निकालना है, तो इट शुड नॉट बी नेगेटिव. ये जीरो हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है, तो वही तुम्हारा रिस्ट्रिक्शन होगा. तो अभी हम डायलॉगबाजी शुरू करते हैं. क्लियरली, ये क्लियर हम लिखते ही है, क्लियरली नहीं होने से भी क्लियरली लिख देते हैं कभी कभी. क्लियरली नहीं मतलब क्लियर नहीं होने से भी. Clearly fx is defined, clearly fx is defined if 9 minus x square is greater than or equal to 0. So that means 9 is greater than or equal to x square. So x square is less than or equal to 9. पेज एक ले लिया मैंने. You will see this. अब तुम इसको पहला वाला इनइक्वालिटी के साथ कंपेयर कर सकते हो. डायरेक्ट लिखो x belongs to सॉरी, ये क्या होगा? इट विल नॉट बी ओपन इंटरवल, इट विल बी क्लोज इंटरवल 3 to 3. ठीक है. Therefore डोमेन ऑफ f इज -3 to 3. ये हमने डायरेक्ट लिखा. कहानी खत्म. अब रेंज का बात चलाते हैं. ऑल्सो लेट. अच्छा, रेंज कैसे निकालेंगे? यहां से डायरेक्ट नहीं निकल पाएगा इस बार.
सो व्हाट विल डू यू सी, रेंज के लिए हमेशा मैं ये छोटा सा एक फिगर बनाऊंगा। देखो क्या तरकीब क्या है। ये रहा डोमेन, ये रहा रेंज। मैं इस कोडोमेन रेंज में से एक y को निकालूंगा आर्बिट्ररी, और मुझे इस y का कैरेक्टर बोलना है। तो y का डायरेक्ट नहीं निकाल पाऊंगा, तो y अगर रेंज में रहेगा तो इसका कोई ना जोड़ीदार तो वहां पे x में रहेगा एवरी इमेज। विद द हेल्प ऑफ दिस x विल बी टॉकिंग अबाउट y। दैट्स द general method. So we are going to find here or use the general method of finding the uh, domain, sorry, range. तो देखो कैसे लिखेंगे। Let y belongs to range of f be arbitrary। be arbitrary, arbitrary मतलब कोई भी हो सकता है। then there exists, ये symbol there exist का है, right? This symbol is for there exist। there exist x belongs to domain such that, कैसा होगा, such that image of x is y। अब fx का जो तुमको एक रूल दिया था डेट यू अप्लाई, कोई रोकेगा नहीं तुमको। ये स्टेप आने के बाद तुम्हारा एक जनरल है कि यहां से तुम्हें x का वैल्यू निकाल देना है। x का वैल्यू मतलब x का वैल्यू नहीं, यू शुड फाइंड एक्सप्रेशन ऑफ x। सो यू फाइंड व्हाट इज x स्क्वायर, इट विल बी 9 माइनस y स्क्वायर। x अगर तुम स्क्वायर रूट लोगे तो प्लस माइनस आ सकता है, क्योंकि x यू हैव पिक्ड अप फ्रॉम द डोमेन एंड डोमेन में नेगेटिव नंबर्स है, सो यू विल राइट प्लस माइनस। बस यहां आके तुम डिसीजन लो। अभी ये वाला x -3 टू +3 तक है, एंड इन पर्टिकुलर इट इज ए रियल नंबर। तो तुम्हें y को इतना वाइजली चूज करना पड़ेगा सो दैट यहां वो y बैठाने से रियल आउटपुट मिले, राइट? सो कैसे लिखेंगे, बट x इज रियल, ब्रॉडर इसमें पकड़ लिया है। -3 to 3 बाद में सोचते हैं, राइट? इट इज रियल, therefore 9 minus y square will be greater than or equal to 0। ये होना ही पड़ेगा। सो यहाँ पे और मुझे एक स्टेप लिख के नहीं बताना है, क्योंकि इट इज जस्ट द सेम स्टेप व्हाट वी फॉलोड एट द टॉप। सो मैं डायरेक्टली यहाँ से लिख देता हूँ कि y is also belonging to this। अब तुम यू कैन गो बैक नाउ टू द फिगर। मैंने क्या बनाया था, मैंने y रेंज से लिया था, और यहाँ एक ढूंढा, बाद में पता चला y कहाँ रहता है, -3 to 3। इसका मतलब y का वैल्यू कहां से कहां वेरी करेगा, -3 से लेकर 3 तक। क्या यहां तक समझ में आया? Yes, sir. एकदम क्लियर टू? Yes, sir. We should. ओके, डज इट मीन दैट दिस इज द रेंज? ये नहीं है। हमेशा याद रखना, वट एवर वैल्यू यू गेट इज रेंज, या फिर वट एवर सेट यू गेट इज रेंज, once you go back to the original function, observe its character, क्या उसमें और कोई छुपा हुआ चीज है? बिकॉज दैट माइट ऑल्सो रेस्ट्रिक्ट यू। तो यहाँ पे अगर मैं ओरिजिनल फंक्शन को देखता हूं, देख लो मेरा फंक्शन ऐसा था। यहाँ क्या साइन नजर आता है तुमको, व्हाट साइन आई गॉट? आई गॉट प्लस साइन, राइट? तो इसका मतलब एफ एक्स का वैल्यू हमेशा प्लस आएगा या जीरो आएगा, नॉन जीरो वैल्यू, नॉन नेगेटिव वैल्यू आएगा। तो y वैल्यू कभी -3 के साइड में नहीं आएगा। तो तुम्हें ये बोलना है, बट y इज नॉन नेगेटिव। y इज नॉन नेगेटिव कहां से पता चला? डेफिनेशन से। therefore y must belong to 0 to 3। therefore a range of f is equal to 0 to 3। this is the very important part you should remember। अगर वही यहाँ पे पहले से ही माइनस दे दिया होता, मान लो तुम्हारा फंक्शन में ऐसे करके दे दिया होता, तो क्या होता, तब मुझे -3 से 0 तक लेना होता, राइट? -3 से 0 तक लेना होता।
Yes, this question is over. So if you have any queries, you can ask me. Do you have any queries? Sir, so even after getting the answer, we have to verify with the original functions Yes, restrictions, right? yes, because basically that restriction comes for your like trigonometric function हो सकता है, पॉलिनोमियल फंक्शन में बहुत कम रिस्ट्रिक्शन आता है, राइट? लेकिन एल्जेब्रिक फंक्शंस में जहां स्क्वायर रूट वगैरह होता है उसमें रिस्ट्रिक्शंस थोड़ा सा ज्यादा रहता है, सो यू शुड गो बैक टू द ओरिजिनल फंक्शन। पॉलिनोमियल फंक्शन में नहीं जाने से भी उतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, फिर भी वी हैव टू डू, इट इज बेटर फॉर आवर सेक ऑफ कन्वीनियंस, दैट्स ऑल। ठीक है, सो विल कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, ये सारे क्वेश्चंस अभी थोड़ा थोड़ा अच्छा होगा, विल बी डूइंग दिस, दीज आर वार्म अप क्वेश्चंस एक्चुअली, इससे भी थोड़ा सा टाइप क्वेश्चंस और मिलेगा, एंड इट इज बेटर नाउ टू प्रैक्टिस ओनली, क्योंकि 12 में इसके लिए हमें टाइम नहीं मिलेगा। ओके, फाइंड द रेंज। इसमें रेंज निकालने दिया है क्योंकि तुम्हें डोमेन दे ही दिया है, देखो यही डोमेन है, पीछे जब रेस्ट्रिक्शन डाल ही दिया है कि तुमको एक यहाँ से उठाना है या वहां से उठाना है, इसका मतलब तुमको डोमेन दे दिया है, यू आर गिवन द डोमेन। तो रेंज निकालना है, रेंज निकालना मतलब वो जो अभी थोड़ी देर पहले किया था बात, वही है हमको यूज करना। ठीक है, मैं पहला वाला ले रहा हूँ, एफ एक्स इक्वल टू 2 - 3x, एक्स इज अ रियल नंबर एंड पॉजिटिव। ठीक है, इसी रेस्ट्रिक्शन में हमें निकालना है व्हाट इज इट्स रेंज। सो एफ एक्स इज इक्वल टू 2 - 3x, x बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड x इज पॉजिटिव। अब मुझे रेंज निकालना है तो मैं क्या करूंगा, मैं देखो ये पहला कुछ दिनों में तुम इस फिगर को जरूर ड्रॉ करना, तब तुमको विजुअलाइजेशन होगा। तो रेंज निकालना है, इसमें रहेगा y, इस y का अगेंस्ट में एक x मिलेगा, एंड देन विद द हेल्प ऑफ दिस x विल स्टडी y। ये बात ऐसा हो गया कि जैसे एक देश के बारे में स्टडी करना है, वी वांट टू स्टडी फॉर स्टडी ए कंट्री, सो वहां से एक किसी रैंडम आदमी को ले लो, राइट? तुम डायरेक्ट कैसे पकड़ोगे? मान लो मुझे पाकिस्तान के बारे में कुछ जानना है, मेरा कोई रिलेटिव है ही नहीं वहां पे, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ कोई है क्या जो पाकिस्तान को जानता है और मैं उसको जानता हूँ, उसके जरिए मेरे को इन्फॉर्मेशन मिलेगा। तो आई वांट टू नो अबाउट द रेंज। रेंज में एक एलिमेंट मिल गया, लेकिन इसको तो हम जानते नहीं है, सो इसका रिलेटिव को पहले ले लेते हैं। विद द हेल्प ऑफ दिस एक्स विल स्टडी व्हाट रेंज इज। तो यही बात है, ये डायलॉग मैंने मार दिया फिर। तो आइडिया ऐसा है, लेट एक्स बिलोंग्स टू रेंज बी आर्बिट्ररी, राइट? ये आर्बिट्ररी है, हमने पकड़ लिया। देयरफॉर देयर मस्ट एग्जिस्ट, देयर एग्जिस्ट एक्स बिलोंग्स टू, कहां पे होगा, डोमेन, राइट? डोमेन मतलब रियल नंबर विच इज पॉजिटिव, सच दैट क्या मिलेगा, एफ ऑफ एक्स इक्वल टू वाई। इसके बाद तुम्हारा मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है, यू हैव टू फाइंड एक्स। अब कैसे निकालोगे वो तुम्हारा कैपेसिटी होगा, क्योंकि इतना कंफर्टेबल फंक्शन नहीं भी हो सकता है। सो यू गेट दिस। अब तुम्हारे हाथ में टाइम है टू कमेंट ऑन द, सॉरी ये एक्स होगा, टू कमेंट ऑन द वैल्यू ऑफ वाई। अभी तुमको ये सोच समझ के बताना है। देखो बहुत बढ़िया है, क्लियर है। मुझे एक्स इक्वल टू इतना मिला, एक्स क्या चीज है, रियल नंबर है, और क्या चीज है, पॉजिटिव है। अच्छा, तो एक्स का स्ट्रक्चर कैसे दिखता है, एक फ्रैक्शन जैसा दिखता है। फ्रैक्शन का नीचे वाला तो 3 है, इसको कोई तुम चेंज नहीं कर सकते, ये ऑलरेडी पॉजिटिव है। तो पूरे के पूरे चीज को रियल होना है, एंड देन एट द सेम टाइम इट शुड बी पॉजिटिव। सो only option left is that numerator should be positive and it should be real. So what I can write, dialog बाजी ऐसे होगा, since x belongs to R and x greater than 0, therefore 2 minus y, sorry, 2 minus y must be greater than 0, राइट? क्योंकि ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 नहीं कर सकते हो, ये इक्वल कर देने से एक 0 हो जाएगा, एंड देन x कैनॉट बी ग्रेटर देन 0। सो
यहां से क्या होगा, 2 ग्रेटर देन y, एंड देन व्हाट विल इट इम्प्लाई, व्हाट विल इट इम्प्लाई, 2 ग्रेटर देन y का मतलब है y बिलोंग्स टू 2 onwards up to infinity, 2 onwards up to infinity, right? ए उल्टा लिखा मैंने, y लेस देन होगा, Sir, सॉरी, yes. यस, it is not correct, I have written, it is okay, you write this step, otherwise there is a good chance that we commit mistakes. So it belongs to minus infinity to 2, but 2 will not be included, so therefore range of f is minus infinity to 2. So please see this. ठीक है, तो नेक्स्ट फंक्शन का नाम एफ एक्स ही है, एक्स स्क्वायर प्लस 2। चलो ये तीनों को कुछ कुछ क्वेश्चंस में डायरेक्ट डायरेक्ट कर दूंगा, बाद में तुमको होमवर्क दूंगा। तुमको होमवर्क क्या दूंगा, मैं ऑलरेडी टुडे आई हैव गिवन यू 2 शीट्स, राइट? उसमें कुछ कुछ Yes, होमवर्क sir. के लास्ट में है, वो करने से भी होगा। एफ एक्स Okay, इक्वल sir. टू एक्स स्क्वायर प्लस 2 वेयर एक्स इज ए रियल नंबर। डोमेन दे दिया है, इसके बारे में बोलना है। इसमें हम लोगों को थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन से करने का मौका मिलेगा, राइट? क्यों मिलेगा, देखो करने से पता चलेगा। अब ऐसा नहीं है कि हमेशा प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन से होगा, ये थोड़ा सिंपल फंक्शन है, वी कैन डू इट। कैसे करेंगे देख लो। फॉर एक्स बिलोंग्स टू रियल नंबर, व्हाट कैन यू से अबाउट एक्स स्क्वायर? ये बोल सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर कभी नेगेटिव नहीं होगा, तो 0 या 0 से बड़ा होगा। मुझे ये वाला जनरेट करने के लिए दोनों साइड में 2 को ऐड कर देना है, कर दो। जब ये जनरेट हो गया, मुझे मिलेगा एफ एक्स ग्रेटर देन 2। अच्छा, एफ एक्स मतलब ही तो प्रोडक्ट सब था, मतलब y का वैल्यू। तो इसका मतलब क्या हुआ, एफ एक्स इज बिलोंगिंग टू 2 टू इंफिनिटी। इसका मतलब रेंज हो गया, रेंज ऑफ एफ इज 2 टू इंफिनिटी। देखो ये कितना आसान प्रॉब्लम है, बीच में आसान प्रॉब्लम भी हमें मिलता है। लास्ट वाला तो मुझे नहीं करना है, क्योंकि वो आइडेंटिटी फंक्शन है, तुम बोल ही सकते हो। यू हैव दिस ऑलरेडी, यू हैव डिस्कस दिस एज in your general discussion. So it is identity function, you can get it. So now I am going for the miscellaneous. कुछ पूछना है? No, sir. Understood. Okay, so I am going to bring the miscellaneous questions. अच्छा, miscellaneous एग्जांपल में एक यहाँ पे लोचा है थोड़ा सा, मेरे जो डाउनलोडेड बुक है। कोई बात नहीं, मैं बोल रहा हूँ क्या लोचा है। थोड़ा सा प्रिंटिंग एरर है, मे बी द पीडीएफ वाज नॉट प्रॉपर्ली स्कैन्ड, और मे बी कन्वर्सन में कुछ गड़बड़ होगा। सो क्या गड़बड़ हो रहा है देखो, व्हाट इज द गड़बड़ी। वो ब्रैकेट है, वो जो 3-4 बॉक्स दिख रहा है, दैट इज एक्चुअली सेकंड ब्रैकेट। दिस इज ए सेकंड ब्रैकेट, ये होना चाहिए ऐसा। एक्चुअली इस टाइप का फंक्शन को पीस वाइज फंक्शन बोलते हैं। पीस वाइज फंक्शन स्टेप फंक्शन नहीं है। हाँ, स्टेप फंक्शन में स्टेप जैसा दिखता है, स्टेप फंक्शन इज ऑल्सो पीस वाइज फंक्शन, बट पीस वाइज फंक्शन may not be a स्टेप फंक्शन। तो पीसवाइज का मतलब है डोमेन को पार्ट पार्ट करके, काट काट के देता है कि यहाँ से यहाँ तक ऐसा होगा, यहाँ से वहां तक वैसा होगा। तो यहाँ पे दे दिया है, रिलेशन दिया है इसमें, एफ एक्स इक्वल टू एक्स स्क्वायर, जब तुम्हारा वैल्यू 0 और 3 के बीच में, इंक्लूडिंग दैट विल बी देयर। और 3x लिखना पड़ेगा जब 3 और 10 के बीच में नंबर लोगे, इंक्लूडिंग द एंड्स। और ठीक उसी तरह से जी एक्स के लिए भी लिखा है इसे। अब ये पूछा है, सो दैट एफ एक्स इज ए फंक्शन, जी एक्स इज नॉट ए फंक्शन। फंक्शन दिखाना है मतलब लॉजिकली तुमको ये दिखा देना पड़ेगा दैट एवरी पॉइंट इन द डोमेन, राइट, हैज सिंगल इमेज, यूनिक इमेज। तो मैं क्वेश्चन नंबर
वन का पहला पार्ट लेना चाहता हूँ, एफ एक्स इक्वल टू, मैं ब्रैकेट नहीं दूंगा और यहाँ पे ब्रैकेट दे रहा है वो लोग, नहीं देने से भी चलता है, सॉरी ये x है, एंड देन दिस इज 3x, 3 लेस देन x लेस देन 10। तो पहले समझ लो थोड़ा सा, राइट, समझ लो, फिर तुम कमेंट खुद ही कर सकते हो। तुम्हारा डोमेन कहाँ से कहाँ दिया है समझने के लिए ये बना रहा हूँ, ऐसा नहीं है कि बनाना ही है। 0 से 10 और यहाँ 3 में एक टूट गया है, तो इस वाले जगह पे जो भी वैल्यू आएगा एक्स स्क्वायर बोलोगे, और इस वाले पे जो भी आएगा 3x बोलोगे। अच्छा, ये तो सारे के सारे नॉन नेगेटिव नंबर्स हैं। क्या कोई नॉन नेगेटिव नंबर्स को स्क्वायर करने से दो अलग अलग नॉन नेगेटिव का स्क्वायर सेम हो सकता है? कभी नहीं होगा। तो 0 से 3 के बीच में इंक्लूडिंग 0 और 3 तुम अगर स्क्वायर करके निकालोगे तो प्रोडक्ट इज यूनिक। कहने का मतलब यही है कि फॉर एवरी x बिलोंगिंग टू 0 to 3 x स्क्वायर इज ऑलवेज यूनिक। मेरे इस यूनिकनेस के ऊपर क्वेश्चन तभी आता अगर किसी कारण डोमेन में नेगेटिव नंबर्स भी होता, फिर भी प्रॉब्लम नहीं होता, राइट, स्क्वायर तो यूनिक होगा ही ना। थोड़ी दो Yes, sir. डिफरेंट नंबर्स का स्क्वायर एक हो सकता है, होने से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक नंबर का स्क्वायर दो निकाल सकता है क्या? एक नंबर का स्क्वायर दो निकाल सकता है क्या? कि स्क्वायर ऑफ वन, एक बार वन निकला, स्क्वायर ऑफ वन एक बार 10 निकला, नहीं निकाल सकता है। ठीक है, ओके, सम डिस्टर्बेंसेस वाज देयर, सॉरी। तो ये हो गया, लेकिन लोचा कहाँ है मालूम है? ये 3 में लो है, क्योंकि 3 तुम्हारा दो जगह रख दिया है, इधर भी रखा है इधर भी रखा है। बस तुम्हें 3 का ख्याल रखना है, बाकी में तो यूनिक होगा ही। तो लिख दो इसको पहले थोड़ा सा क्लियरली, क्लियरली, for for x belongs to 0 to 3 fx equal to x square, right? This, which is unique for every x, which is unique for every x square is unique for every x। ये हमने डायलॉग लिखा। Also for x belongs to 3 to 10, right, 3 to 10 fx equal to 3x, so 3 times of a number is always the same, unique, right? Which is also unique for x belongs to 3 to 10। ठीक है, तो यूनिक तो तुमने बोल दिया, लेकिन इसमें फिर भी कहानी एक रह गया। तुम्हें यूनिकनेस पूरा 0 से लेके 10 के बीच में दिखाना है। तुम तो पार्ट पार्ट करके दिखाया, नहीं होगा पार्ट पार्ट करके दिखाने से। अगर कोई कॉमन पॉइंट बच गया तो गड़बड़ होगा, और तुमको नोटिफाई करना है। तो दिखाना है ऑल्सो f of 3 is equal to 3 square, that is equal to 9, and f of 3 is equal to 3 into 3, that is equal to 9. That is 3 also has unique image, right? 3 also has unique image. If 3 also has unique image, इसका मतलब सारे के सारे डिफरेंट, सारे इमेज का, सारे एलिमेंट्स का इमेज यूनिक। That is the image of every element in 0 to 10 are unique. Therefore f is a function। ये एक फंक्शन होगा, f is a function होगा।
Just before I go for anything else, please see whether you have understood or not. और अगर कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो. Before I go for the next question, next part. Sir, so we had to show for F3 because it was the common for both cases, right? Yes, it is common for both. So we have to assure कि दोनों पार्ट हमको दो अलग अलग आंसर ना दे. They give me the same answer. नहीं तो गड़बड़ Sir, होगा. so if they're not unique, then it will Then it not be will a not be. function. We'll see this in the second function, gx. Okay, sir. So you write here gx equal to functions criterias are defined same, only split domain has been changed. पिछले बार 3 to 10 दिया था, इस बार 2 to 10 और इसमें 0 to 2 दे दिया. तो इसमें डायरेक्टली तुम हिट करो ये प्रॉब्लम नहीं, बाकी देखना ही नहीं है, क्योंकि फंक्शन a relation will never be a function even for one point, right? एक पॉइंट के लिए भी अगर दो इमेज निकलता है ना ऐसे करके, तभी भी फंक्शन नहीं होगा. एक पॉइंट, बाकी सारे के लिए सिंगल है. तो बस मुझे पहले टारगेट करना पड़ेगा 2 हियर एंड 2 हियर. सो यू राइट फॉर 2 बिलोंगिंग टू 0 to 2, इस इंटरवल में z2 का वैल्यू कितना है? 2 square, that is equal to 4. And 2 belonging to 2 to 10, z2 का वैल्यू कितना है? 3 into 2 6. देखो, तो यहां पे क्या लिखोगे? That is 2 has 2 different images. 2 has different images under the mapping Z. Under the relation. मैपिंग बोल देने से गड़बड़ होगा. मैपिंग मतलब भी तो रिलेशन है, फंक्शन. अंडर द रिलेशन Z. Therefore Z is not a function. हमें बाकी पॉइंट्स देखने का जरूरत ही नहीं है. You need not see other points if you can find कि एक पॉइंट भी ऐसा मिले जिसमें तुम्हें मोर देन वन इमेज मिले. ठीक है. So we got this. Now we are going to bring the other questions. दो क्वेश्चन एक साथ लाते हैं क्योंकि इसका एक क्वेश्चन मुझे नहीं करना है. You will be able to do that. I think यहाँ तक कोई डाउट नहीं है. No, sir. It's clear. School, how much has been done? Sir, school, we're still in relations only. We have our next Is this class exercise again from Tuesday. it is started, this one? Sir, this chapter we have started, but we have not reached function Okay. yet. We're doing relations only. Okay, fine. So now you find question number 2. F of x equal to x square, then you have to find what is this. अरे भाई ये क्या मतलब है, इसको तो करने लायक है ही नहीं. जैसे f of 1.1 क्या लिखोगे? 1.1 होल स्क्वायर लिख लो, कर लो. इसको मेरे को नहीं करना है. इट इज लाइक द सिंपल पॉलिनोमियल वन. इसको कर लेते हैं. देखो, फाइंड द डोमेन ऑफ द फंक्शन फॉर दिस. ठीक है, डोमेन निकालने दिया है. डोमेन, बस कहानी में अभी थोड़ा सा ट्विस्ट आएगा. सॉरी, मैंने ऊपर उठा दिया थोड़ा ज्यादा जल्दी. अभी हमें निकालना है क्या? डोमेन निकालना है. तो पहले क्वेश्चन नंबर 3 का फंक्शन लिख लेते हैं, भले ही ऊपर फंक्शन दिया हुआ है. बिकॉज these are the problems I am doing for the first time for you. I'll be writing the complete statement because we need complete statement for your board exams. कॉम्पिटिटिव के लिए तो साइड में करके भी हम लोग इसको कर सकते थे. देखो, ये एक कैसा दिखता है? a by b टाइप का फ्रैक्शन दिखता है.
कल को कोई भी अगर आदमी को पूछा जाए भाई ये फ्रैक्शन कब डिफाइन होगा, जब नीचे वाला जीरो ना हो, बाकी ऊपर का मतलब नहीं है, ऊपर का रियल होने से ही मतलब है, ठीक है। और यहाँ पे तो कोई रूट ओवर का चक्कर नहीं है, तो ऊपर वाला कोई भी रियल नंबर के लिए रियल होगा, राइट। बस कहानी है कि इसमें मेरा लफड़ा ऐसा ना हो कि जीरो आए, तो हम लोग डायरेक्टली क्या लिखेंगे, कुछ नहीं लिखना है, एक बहुत प्यारा सा डायलॉग लिखो, एफ एक्स इज डिफाइंड, डिफाइन मतलब इसका वैल्यू हम लोग फाइनाइटली निकाल सकते हैं, इफ एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 इज नॉट इक्वल टू 0। तो नॉट इक्वल टू 0, अच्छा, तो तुम ऐसे कर दो, ये कर दो, तुम इसको फैक्टराइज कर दो, डायरेक्ट कर ही सकते हो, तो आई विल नॉट शो यू दिस, यू कैन डू इट इजिली। ये हो गया, तो ये अगर जीरो नहीं होना है, इसका मतलब x शुड नॉट बी इक्वल टू 6 एंड x शुड नॉट बी इक्वल टू 2। मतलब कहने का अर्थ यही है कि ऐसा रियल नंबर तुम ढूंढ के लाओ जो रियल नंबर 6 और 2 ना हो, बाकी कोई भी रियल नंबर इसके लिए चलेगा इनपुट के लिए। तो देयरफॉर डोमेन ऑफ दिस विल बी इक्वल टू सारे के सारे रियल नंबर एक्सेप्ट 2,6। बहुत लोग गलती से इसमें ऐसे लिख देते हैं, या फिर 2 to 6 ऐसे लिख देते हैं, क्लोज इंटरवल, और ये नहीं आएगा, राइट। बी वेरी वेरी अलर्ट अबाउट दिस, ठीक है, समझ में आ गया? Yes, sir. Yes, sir. ओके, नाउ यू सी, इसी क्वेश्चन को, दिस सेम क्वेश्चन मैं थोड़ा सा एक्सपेरिमेंट कर देता हूं इसमें। हो सकता है कल को मैं इसलिए 3 स्टार दे दिया, डोमेन पूछ ले तुमको एक्स स्क्वायर प्लस ट्वाइस एक्स प्लस 1, और नीचे बोल दिया एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12। व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन नाउ? डोमेन में क्या करेंगे अभी? ऑब्जर्वेशन बोलो बस, कैसे करेंगे बाद में सोचेंगे। व्हाट रेस्ट्रिक्शन आई विल पुट नाउ? न्यूमरेटर में कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है क्योंकि रूट ओवर है नहीं, लेकिन डिनोमिनेटर में कुछ रेस्ट्रिक्शंस है। एक तो जीरो हो नहीं सकता ना, Sir, it cannot be negative. cannot be negative, yes, that's what, that means it should be always non negative। तो इसको थोड़ा मैं शॉर्टकट मार के समझा देता हूँ, ऐसे नहीं करूंगा सिर्फ कैलकुलेशन। तो इसका मतलब ये जो क्वांटिटी है ना, इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो। कहने का अर्थ है एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 12 शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। इसका मतलब x माइनस 6 इंटू एक्स माइनस 2 ग्रेटर देन और इक्वल टू जीरो। अच्छा, आप तो लोचा हो गया, इसका तो हमको सॉल्व करना नहीं आता भाई। आता है ना, हम देता है ना तुमको, आई गिव यू द शॉर्टकट, पहले शॉर्टकट, इसके बाद हम इसका बैकग्राउंड देखेंगे कि कैसे होता है, राइट। तो रेडी रेकनर का जैसा मैं दे रहा हूँ अभी, तुम घर में सोचना कैसे ऐसे होता है इनइक्वालिटी का। इफ यू हैव सच थिंग्स एंड देन यू आर टॉकिंग अबाउट ग्रेटर देन जीरो, मैं नंबर में दे देता हूँ, तब तुमको समझने में ज्यादा आसानी से होगा। नंबर लाइन में ये लेस देन और इक्वल टू जीरो कहाँ कहाँ होता है, राइट। तो तुम्हें नंबर लाइन में देखोगे तो यू विल बी एबल टू रिमेंबर इट वेरी केयरफुली। अच्छा, इसमें ये कहावत है कि ए एंड बी आर पॉजिटिव, तो इस वाले का जीरो कितना होगा? ए होगा, इस वाले का जीरो बी होगा। तो ये जीरो को यहाँ बैठा लो, ए इज स्मॉलर सपोज, बी इज बिगर। यहाँ पे मेरा ये सपोजिशन मैंने मान लिया, जो नंबर लाइन में जैसे आएगा बैठा लो नंबर, ठीक है। और ये गोला कंप्लीट होगा अगर ये इक्वलिटी होगा, एंड इफ इट इज स्ट्रिक्ट इनइक्वालिटी ये ओपन गोला होगा, तो वो मैं लिखूंगा नहीं। अब तुम्हारा डायरेक्टली लिखो, ग्रेटर बाहर जाता है, स्मॉलर अंदर रहता है। बस यही तुम्हारा एक मेमोरी एड है। कोरोना काल है, कोरोना काल में क्या होता है, नॉर्मली बच्चों को बाहर जाना पूरी तरीके से बंद है, बड़े आदमी को किसी रेस्ट्रिक्शन में बाहर भेजना अलाउड है। तो ए और बी से घेरे हुए जो हिस्सा है, इसमें
लेस देन वाला पार्ट आएगा और बड़ा बाहर इधर उधर जा सकता है, ये मेमोरी है। इक्वलिटी आएगा तो ये दोनों इंक्लूडेड, स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होगा तो एक्सक्लूडेड। तो ऊपर वाला जिसका है यहां से डायरेक्टली मुझे मिलेगा x बिलोंग्स टू माइनस इंफिनिटी टू a, अच्छा ये क्लोज होगा, एंड देन b टू इंफिनिटी, और नीचे वाला जो है लेस देन है तो ये रहेगा a टू b, और अगर स्ट्रिक्ट इनइक्वलिटी होगा जस्ट ब्रैकेट को ओपन कर दें। समझ में आया? कैसे आया ये नहीं बोल रहा हूँ, बस मैं ये बोल रहा हूँ कि ये है, ये समझ में आया है या नहीं मेमोरी ट्री? Sir, can you explain the number line once again? हाँ, नंबर लाइन में मैं क्या बोलना चाहता हूँ, इफ यू हैव एनी एक्सप्रेशन ऑफ दिस काइंड, दो के लिए बोल रहा हूँ, ठीक है, दो के लिए, ज्यादा के लिए इसका नियम अलग होगा, फॉर बिगर द अदर नियम विल बी देयर, अदर रूल विल बी देयर। फॉर टू यू फाइंड द जीरोस ऑफ दिस टू, तो ए एंड बी मिलेगा। मैंने ए को स्मॉलर, सॉरी ए को स्मॉलर पकड़ा, ये उल्टा लिखा, ए को स्मॉलर पकड़ा तो लेफ्ट साइड में रहेगा, ये राइट साइड में रहेगा। अगर यहाँ इक्वलिटी का साइन आता है तो पूरा गोला बनाना है, इंडिकेटिंग दैट ए एंड बी विल बी इंक्लूडेड, ठीक है। तो ये जो हिस्सा है बीच वाले पार्ट का, इसमें डोमिनेंस होता है नेगेटिव इसका, लेस देन का, मेमोरी एड का मैं बोल रहा हूँ ये, ठीक है। क्यों डोमिनेंस होता है बोलोगे तो मुझे प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा, मैं बस मेमोरी एड बोल रहा हूँ कि अंदर जो है वो छोटा वाला चीज रहता है, छोटा मतलब लेस देन वाला, और बाहर जो है एक्सटेंडेड में बड़ा वाला रहता है। तो ये वाले में ये कौन सा इंटरवल है, माइनस इंफिनिटी टू ए, एंड इसमें कौन सा इंटरवल है, बी टू इंफिनिटी, ये ग्रेटर देन के लिए है, दोनों का यूनियन होगा, और ये जो है बहुत शान से है लेस देन के लिए, स्ट्रिक्टली लेस देन हो, बस स्ट्रिक्टली होने से ओपन इंटरवल है। एम आई क्लियर? Yes, sir. So now I'll be just going back. You just go back to this and make quickly your answers ready. यहाँ पे क्या क्या होगा, 2 and 6 होगा, और ग्रेटर देन है तो ग्रेटर देन होने से इधर और इधर रहेगा, तो योर x विल बिलोंग टू माइनस इंफिनिटी टू 2 यूनियन 6 टू इंफिनिटी, ये हो गया तुम्हारा डोमेन, दिस इज द डोमेन। सो दिस वे यू हैव टू फाइंड द डोमेन, प्लीज सी वंस, प्लीज सी वंस, और अगर कुछ भी डाउट है तो यू कैन आस्क मी। Today again I'll quickly discuss two steps, two questions, because I'll not write the statements now. It is your responsibility to now write the statement. Statement उसी टाइप का है जो मैंने पहले कराया। और रिलेशन फंक्शंस में एक बात का हमेशा ख्याल रखना, दूसरे वाले स्टेटमेंट जब लिख के देते हैं बहुत ही आसानी होता है, खुद से लिखने के टाइम में लंबा हो जाता है, तो बिकॉज ऑफ दैट यू डू नॉट वेट अप टू द एग्जाम, उससे पहले ही खुद से अपना स्टेटमेंट लिखो। 3 बार लिखने के बाद खुद ही पता चलेगा कि थर्ड टाइम में बहुत बढ़िया से एक्सप्लेन कर पा रहे हैं, एक दिन में नहीं आएगा, ठीक है। सो बिकॉज ऑफ दैट आई विल नॉट राइट द स्टेटमेंट फॉर द नेक्स्ट 2 प्रॉब्लम्स, आई एम जस्ट गिविंग यू द प्रोसेस। सो ये तुम खुद आंसर बना लेना, और अगर डाउट लगेगा तो यू कैन शो मी। Okay, sir. फाइंड द डोमेन इन द रेंज ऑफ दिस फंक्शंस। पहले वाला देख लो, डोमेन पूछा है, रेंज पूछा है। डोमेन क्या है, जिसमें एफ एक्स डिफाइंड हो, तो रूट ओवर के नीचे वाले क्वांटिटी हमें ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 चाहिए। कहने का अर्थ है एक्स इज ग्रेटर देन 1, इसका मतलब है एक्स क्लियरली बिलोंग टू 1 टू इंफिनिटी, तो डोमेन ये है, कहानी खत्म, डोमेन निकल गया। अच्छा, रेंज निकालने के लिए वही फिर हथकंडा अप्लाई करेंगे, वाई चक्कर, ठीक है। तो अगर एक y मेरे को कोडोमेन रेंज में मिलता है तो एफ एक्स इक्वल टू वाई होगा, स्टेटमेंट देख लेना। सो दिस विल गिव मी व्हाट, एक्स माइनस 1 इक्वल टू वाई। तो यहाँ से मेरे को हर हालत में स्क्वायर करके भी, जैसे करके भी क्या निकालना पड़ेगा,
x निकालना पड़ेगा, तो x निकाल दिया मैंने, x इक्वल टू कितना हुआ, वाई स्क्वायर प्लस वन, वाई स्क्वायर प्लस वन हुआ। अच्छा बढ़िया है। तो आप मुझे बोलो x का वैल्यू कितना है, x का वैल्यू होना चाहिए 1 से इंफिनिटी। तो y का क्या वैल्यू यहाँ बैठाने से ये 1 से इंफिनिटी रहेगा? भाई सारे के सारे रियल नंबर तो है, क्योंकि तुम जीरो बैठाने से मिनिमम 1 मिलेगा ही, अदरवाइज तो पॉजिटिव होगा ही। सो आई कैन से क्लियरली, यहाँ से डायरेक्टली होगा क्या, देयरफॉर डायरेक्टली लिखो तुम, डायरेक्टली y बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो तुम्हारे हिसाब से रेंज रियल नंबर होना चाहिए था, लेकिन कहानी एक गड़बड़ है। मैं तुमको फिर बोला हूँ, रूट ओवर है तो यू गो बैक टू दिस, सामने कुछ साइन नहीं है मतलब नॉन नेगेटिव, देयरफॉर डायलॉग लिखोगे, बट y कैनॉट बी लेस देन जीरो। मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ऐसे करके, तुम नॉन नेगेटिव लिखो। देयरफॉर y बिलोंग्स टू, कहाँ से रहेगा, जीरो से लेके इंफिनिटी। सो जीरो टू इंफिनिटी इज द रिक्वायर्ड रेंज। मॉडुलस वाला तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, दुनिया में मॉडुलस का कोई भी वैल्यू निकल सकता है, तो एक रियल नंबर ही होगा। अब इसके बारे में इंस्पेक्शन से ही बोल सकते हो, मॉडुलस हमेशा जीरो देगा या तो पॉजिटिव देगा, तो इसमें कोई दादागिरी करने का बात ही नहीं है, ऐसा टाइप का कुछ करने का बात ही नहीं है, तुम डायरेक्ट बोलोगे वी नो दैट मॉडुलस ऑलवेज रिटर्न्स अस या फिर गिव्स अस पॉजिटिव वैल्यू और जीरो। सो रेंज इज सिंपली जीरो टू इंफिनिटी, बस कहानी खत्म। बाकी क्वेश्चंस आज डिस्कस नहीं करेंगे। वी हैव, आई थिंक आई विल हैव टू टेक, एक दिन तो इसी एक्सरसाइज में लगेगा, देखते हैं इसी एक्सरसाइज में नहीं लगेगा एक दिन पूरा, बट आई नीड वन मोर पीरियड फॉर डूइंग सम एक्स्ट्रा प्रॉब्लम्स, क्योंकि मॉडुलस का और ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का कुछ प्रॉपर्टीज रिलेटेड प्रॉब्लम है जो थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, सो दैट आई डिस्कस। सो आई विल बी टेकिंग 2 more क्लासेस फॉर फंक्शंस स्पेशली, ठीक है। सो एनीथिंग Okay, sir. आस्क टुडे? Sir, no, it is clear. Okay, so I'll be sharing this note to you. Already questions I have Yes, shared. sir. So with the help of that, this idea, try to do some of the questions at least. So today I say goodbye. Sir, should I try writing question number 4 and 5 again with statements? Yes, yes, yes. This Sir, I haven't written now, but I will read through your answers and then I will yeah, try sure. to You write write a statement statements. and take your time, no problem. ऐसा नहीं कि आज ही भेजना है, अगर आज करोगे तो कर दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट आई सी इट टुमारो, ठीक है, एंड देन Okay, sir. गिव द फीडबैक टुमारो ओनली। सो आज बढ़िया से देखो, ठीक है, ओके, बाय। Sir. Okay, thank you, sir. Bye bye.